Hello and welcome to Inside Sports. Today we have a legendary Indian bowler with us. We are out of words to describe him because he has been so great for India, especially in Test cricket. And now that we have come out of a very long Test series against Australia, we'll get his views, we'll speak with him, and we'll try to understand his point of view about how things are going in Indian cricket right now. So, welcome to our show, Miss. Thank you, Abhishek. How are you Thank you. doing? Doing great. I don't know how many people know that. Like, I had some surgery. It's been 1 month Yes. now, so yeah. So I'm just recovering from that. So very eager to become back. So hopefully, How has been and the recovery process now? Like, what goes to a athlete's mind when he's recovering from an injury? sometimes it's very like people saying irritating because you're playing and suddenly something has happened and you're sitting at home doing nothing. So yeah, it's a little bit like difficult time for the Yeah, every like player and the little bit irritation because you can't do anything. So you can't do your normal things or like your routine. You can't follow that. So otherwise, I'm okay. I'm just keep doing better because I yeah, have two little daughters. So, so my time that is that getting helps. past like very happily. So yeah, but still, it's 1 month. So more than 1 month. So hopefully, finger Right. crossed, and get So back. this actually tests an athlete's mental state, right? Like we know that cricketers are very strong physically, but Yeah. when we are injured, when you're injured, it actually tests how mentally strong you are as well, right? To sit at home to watch other players play. So can you speak a little bit about that? Like because a lot of domestic season is also going on. What has been your thought throughout? Abhishek is like that. You have to accept that as a sport Uh, person, you're doing something your body not for made. So you bending your back, you just putting a lot of pressure on your body, your ankle, your knees. So sometimes you have to accept that if I'm doing this kind of thing back to back matches, so hmm. some damage is going to be happen. Of So you course. have to ready for that because in the like in life, in that you say that like present and whatever is happening, so it's going to happen something with your body Right. because it's not made for the fully for the like playing cricket or whatever sports you choose. Yeah. So there's a something here and there is there, so you have to accept that. When you accept that, then you usually like pass your time. If you get injured, then you know that this is a time and I like uh, playing some kind of sports that my body is not made for that. So आपको उसके साथ उसको एक्सेप्ट करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, then it's very easy for the any sports person कि no, this is the Right. part and parcel for the life. क्योंकि लाइफ में कभी अच्छा होता है कभी खराब होता है. तो इज नॉट मीन दैट कि आप you are like you are a bad person or you're bad people. So you Absolutely. have to be like decide because it's your thinking. कौन क्या बोलता है and what is going on in your life is its matter. 15 years since you're playing in the highest level, right? So Yeah. being a bowler, obviously these injuries are natural, which comes towards you. But like you mentioned, like since the one आप एक महीने से you're nursing this injury, तो आपको ज़्यादा टाइम मिला रहेगा बीजीटी फॉलो करने के लिए इंडियन क्रिकेट. आप ऑब्वियसली सब लोग ने फॉलो किया, तो आपके क्या व्यूज है सर कि वी लॉस्ट 3-1 ऑब्वियसली, बट आपके आई लाइक टू नो योर व्यूज की बॉलिंग परफॉर्मेंसेस कैसी थी हमारी इंडियन टीम की गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली स्टैंड आउट परफॉर्मेंस, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक ज्यादा बॉलर्स ने कंट्रीब्यूट किया है या वो इतने शाइन कर पाए. सिराज ट्राइड इज बेस्ट, ही बोल्ड मोस्ट ऑफ द ओवर्स, बट व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? uh, when when I am started as a test bowler, like I start playing test matches and everything. Like I know that कि मेरा जो पहला tour था, like away tour, is like वेस्ट Australia इंडीज. only, and we lost that series very badly. So so what is happened in that? Because sometime because you're thinking you are like best of the best, that's why you selected. But when you playing against the best size, then you feel like कि नहीं, something is missing. या तो कंडीशन है, सिचुएशंस है, और लाइक हमारा जो बॉलिंग लोड है.
बिकॉज सडनली व्हाट इज हैपन कि टीम में चेंजेस आए, नो डाउट, बिकॉज ऑलमोस्ट टीम इज लाइक चेंज, लाइक काफ़ी नए लड़के like they introduce in the like last two series, you know, राइट one is New Zealand and then the Australia. So टेस्ट मैचेस में लाइक क्या होता है कि ना कभी कभी जब आप चेंजेस करते हो ना तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, थोड़ा बहुत डाउन फॉल फॉल आएगा टीम के अंदर, या जो चीज़ आप बहुत अच्छा कर रहे थे शायद थोड़ा सा उसमें कॉम्प्रोमाइज हो, बिकॉज आपके पास एक या दो बॉलर आपके बेस्ट बॉलर हैं, बट उसके बाद 2 से 3 बॉलर आप नए लेके गए हो साथ में। राइट। सो देर देर आकाशदीप ने डेब्यू किया अपना, हर्षित राणा ने, हर्षद आकाशदीप ने नहीं डेब्यू नहीं किया, किया बट आकाशदीप के भी बहुत नए थे, हर्षित राणा बहुत नए थे। हर्षद राणा तो ने डेब्यू किया वहाँ पे। सो आकाशदीप ने 2 मैच आए उन्होंने खेला, उसके हाँ बाद आई डोंट नो व्हाट इज हैपेंड, कोई निकल या कुछ आया तो उन्होंने तीसरा मैच नहीं खेला, फिर प्रसिद्ध ने थर्ड मैच अच्छा किया। राइट बिकॉज बिकॉज व्हेन वी प्लेड लाइक विकेट इज लाइक वेरी फ्लैट, बट दिस बीजेटी विकेट्स लाइक समथिंग डिफरेंट। सो हमने राइट देखा कि वहाँ द विकेट पे हेल्प था फास्ट बॉलर के लिए। सो कुछ ना कुछ बॉल हो रहा था, स्विंग हो सीम हो, बट प्रॉब्लम इज दैट आपका कॉन्फिडेंस, आपका उसके बाद कहते हैं कि मैच्योरिटी एंड द आपका कहते हैं आप कितने मैचेस खेले हो। राइट सो सो आपका एक्सपीरियंस इज मैटर्स, बिकॉज 2 बॉलर आपके पास बेस्ट हैं जो खेल खेल रहे हैं कंटिन्यू टेस्ट मैचेस इंडिया के राइट लिए, बट उसके बाद 2 से 3 जो फास्ट बॉलर हैं दे आर यंग। उसके बाद लाइक थर्ड जो चौथा फोर्थ बॉलर है दैट वाज लाइक आपका नीतीश रेड्डी थे जो। नीतीश रेड्डी इज ऑलराउंडर। सो सो 4 बॉलर है, पर जिसमें से 2 एक्सपीरियंस है, 2 अनएक्सपीरियंस जिन्होंने राइट ऑस्ट्रेलिया में कभी खेला नहीं है। सो डेफिनेटली वहाँ का विकेट, वहाँ का कंडीशन, वहाँ का बाउंस जो है उसको लाइक टेक डाउन करने के लिए यानी समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और आप राइट सडनली आपने इंटरनेशनल सीरीज खेली नहीं और सडनली आपका पहला इंटरनेशनल टूर है ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे होता है। सो ऑस्ट्रेलिया जैसे या यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट कि उतना पेस उतना बाउंस है विकेट पे, तो यू हैव टू बी कंट्रोल योर फीलिंग्स और वो जो भी एक्साइटमेंट है, बिकॉज बुमराह और सिराज को पता था, सो दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल देयर। बट अदर जो बॉलर्स थे दे वेरी न्यू फॉर दैट। सो वो सिचुएशन में वैसी बॉलिंग करना, कहाँ पे क्या करना था, पिच अप करना चाहिए या बैक ऑफ लेन डालनी चाहिए, सो वो वो सब प्लानिंग। एक्सपीरियंस से ही आता है, मतलब हाँ वो वो सब आपको ज्यादा एक्सपीरियंस से आता टूर्स है। खेलने से ही आता है। हाँ, और क्योंकि आपने यूजली देखा होगा कि जो हमारे जो नए बॉलर, मुझे लगता है कि आकाशदीप और प्रसिद्ध होंगे जो उन्होंने सीजन खेला होगा, अदरवाइज अदर बॉलर भी काफी नए हैं, दे आर यंग, लाइक उन्होंने 10 8 10 डेज मैचेस ही खेले हैं अभी तक राइट इंडिया के अंदर भी, डोमेस्टिक मैच भी, तो सो दे नीड मोर टाइम टू बी लाइक। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं उनमें एबिलिटी नहीं है, दे आर कैपेबल ऑफ दैट, बट आप जब टेस्ट बॉलर कैसे बनते हो, जब आप वो चीज़ बार बार करते हो, आप सीजन पूरा खेलते हो टीम के लिए या स्टेट के लिए, सो वो एक्सपीरियंस और वो बैलेंस और वो चीज़ें आपके समझ में आती है कि रेड राइट बॉल से किस तरह की बॉलिंग किस समय पे और क्या चाहिए और कैसे सिचुएशन में क्या करना है। सो नए बॉल से, पुराने बॉल से, फिर उसके बाद टी के बाद और बॉल पुराना होता है, तो उस टाइम पे क्या करना है। सो वो सारी चीज़ें जब आप खेलते रहोगे कंटिन्यू, जितना आप रेड बॉल खेलोगे वो आपकी समझ बढ़ती जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये सब राइट चीज़ें एक्सपीरियंस है, और उसके बाद आपका एटीट्यूड कि आपको रेड बॉल खेलने के लिए आप कितने एक्साइटेड हो और आप कितना एंजॉय करते हो रेड बॉल। कीपिंग जसप्रीत बुमराह अपार्ट, व्हाट डिड यू थिंक वो द बॉलर्स का एटीट्यूड आपको कैसा लगा कि वो लोग डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे कि बैटर्स ने उन्हें डोमिनेट कर दिया था, ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने? क्योंकि यहाँ से हमने आपको देखा है इंडियन पिचेस में बॉल करते हुए, और आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपका हमेशा इंटेंशन रहा है टू डोमिनेट द बैटर्स, एंड टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट दैट, क्योंकि लॉन्ग स्पेल्स होते हैं और इंडियन पिचेस में तो जबकि फास्ट बॉलर्स को इतना हेल्प भी नहीं रहा है, बट फिर भी हम जानते हैं कि हाउ यूज्ड टू कम एंड यूज्ड टू फॉलो अ सेम लाइन एंड लेंथ थ्रू आउट टू डोमिनेट देम। बट आपको ये टूर में क्या लगा? अभिषेक, नॉर्मली क्या होता है कि जब आप टीम के साथ होते हो ना, यू नो कि उस टाइम पे क्या चल रहा है, बिकॉज क्या होता है कि चीज़ें ग्राउंड पे क्या हो रही है, अंदर क्या बात हो रही है, और आप जब तक वो बॉलर से बात नहीं करते तो यू डोंट नो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। राइट एज अ एज अ एज अ आप बोलोगे एग्रेशन और बॉडी आपका बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से तो वी आर देयर, बट उनके दिमाग में माइंड में क्या चल रहा था वी डोंट नो, बिकॉज बुमराह, राइट यू नो दैट कि बुमराह जब भी आएगा बॉलिंग पे, सो ही इज थिंकिंग फॉर द विकेट्स ओनली।
वो ऐसा बॉलर है, बिकॉज वो आपका डोमिनेट यानी बैट्समैन डोमिनेटिंग बॉलर है। वो जब भी बॉल करने आएगा तो ही इज थिंक फॉर द विकेट ओनली, एंड राइट। ही न्यू दैट कि अगर वो विकेट लेगा सो आगे जो बॉलर्स है उनके लिए इजी होगा। सो उसको वो प्रेशर राइट। बनाना पड़ेगा, बिकॉज ही इज द बॉलर जो पूरे जो बॉलिंग हमारा ग्रुप था उसको लेके चल रहा था साथ में। सो उसका परफॉर्म करना और वो वैसा प्रेशर क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट था टीम के लिए। और राइट। दूसरी बात रही सिराज, सिराज एक तरफ से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट समटाइम इज हैपन, क्योंकि आप अच्छा भी बॉलिंग करते हो बट समटाइम यू नॉट गेटिंग विकेट्स, बट यू कीप ट्राइंग एंड जस्ट सपोर्टिंग योर अदर पार्टनर कि हाँ कि मैं वो अच्छा डाल रहा है उसे विकेट मिल रहा है तो आई हैव टू बी राइट। सपोर्ट। सो और फिर जब बात आती थी दोनों के बाद, जो तीसरा बॉलर है वो एकदम से अनएक्सपीरियंस्ड है। सो उसमें क्या होता है कि कभी कभी आपको विकेट तो मिलता है, बट द बैट्समैन ऑल्सो न्यू कि आप नए बैटर्स बॉलर। ने तो आई थिंक सो अंडर परफॉर्म किया ही है, अपार्ट फ्रॉम वेरी फ्यू। आई थिंक यशस्वी जायसवाल वाज द मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर, और फिर उसके बाद नीतीश रेड्डी जो अपना डेब्यू कर रहे थे सीरीज में, वो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे। बट वन प्लेयर जिसने टोटली आउट परफॉर्म कर दिया सबको, वो जसप्रीत बुमराह थे, जो प्लेयर ऑफ द सीरीज भी थे। आप बहुत खेले हो जसप्रीत बुमराह के साथ, आपको क्या लगता है व्हाट सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम अदर बॉलर्स? ऐसा क्या कैपेबिलिटी है? बिकॉज ही इज नॉट वेरी, वो ऐसे तो नहीं है कि 150 के पेस में बॉल डालते हैं, बट वो क्या एक अलग चीज है उनमें जो उन्हें सब बॉलर्स से अलग करती है मतलब? डेफिनेटली एक तो एटीट्यूड, मैंने आपको बोला वो राइट। उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी डिफरेंट है। कि उनको जब भी वो बॉलिंग पे आते हैं वो विकेट के लिए सोचते हैं, और उनका माइंड काफ़ी अलग काम करता है बाकी बॉलरों से, क्योंकि जो राइट। उनकी आप कह सकते हो कि टेंडेंसी रही है कि एक तो एंगल से बॉल डालते हैं, और वो उस एंगल से ही उस क्रीज के कॉर्नर से इन स्विंग आउट स्विंग दोनों करवाने की कोशिश करते हैं। वो भले ही ओवर द विकेट है या अराउंड द विकेट है, वो चीज़ में उन्होंने उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। वो चीज़ वो काफ़ी अच्छी करते हैं। और उसके बाद जो उनका लाइन और लेंथ है, ही इज राइट। लाइक ऑलवेज क्लोज टू योर स्टंप लाइन, या तो कॉट बिहाइंड एलबीडब्ल्यू बोल्ड आपने देखा होगा काफ़ी उनको मिलता है। सो एक वो चीज़ है, और दूसरा होता है माइंडसेट, जो उन्होंने अपना माइंडसेट बना रखा है। बिकॉज जब एक बॉलर इस चीज़ में आता है और ही नोज दैट कि ऑल द बैट्समैन स्ट्रगल टू प्ले हिम, सो एक जो उनको जो बात होती है कि उनका एक्शन भी थोड़ा डिफरेंट हाँ। है, और जो उनको थोड़ा सा यूजली जो उनका हाइपर एक्सटेंशन एक्शन है जिसमें जिसका उनको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, जो बैलेंस है, जैसे कि उनके हाथ से जो बॉल रिलीज होता है, रिलीज पॉइंट है। सो वो सारा एक्सटेंशन काफ़ी ज़्यादा है एज अ फास्ट बॉलर। सो राइट। वो चीज़ वो काफ़ी अच्छे से यूज़ करते हैं। उनको पता है कि मेरा लाइन और लेंथ क्या होना चाहिए, बिकॉज वो उनको ये भी पता है कि उनका सारा जो पावर है वो लास्ट मोमेंट पे जनरेट होता है, बिकॉज उनका रन ऑफ या रिदम आप देखो इतना कोई बड़ा नहीं है, और इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द लाइक रन अप वाला बॉलर की। या जिनका रन अप अच्छा सो है तो उसको ऑलरेडी पेस बॉलर मिलेगा, के दिमाग में एक डर है ही कि जसप्रीत बैट्समैन बुमराह भी है, दिमाग में एंड हाँ, ही बिल्कुल या यूटिलाइज द मोस्ट आउट ऑफ इट। So या we have seen a lot of Jasprit Bumrah lately, but do you think that he was being overused? मतलब अभी ऐसा लगता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह को पूरे 5 मैचेस नहीं खिलाने चाहिए थे कि what are your views about it? मतलब being a bowler, you know कि how difficult it is. सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप कह सकते हो, बट मुझे लगता है कि बीच बीच में जो गैप्स भी आए हैं, या बॉक्सिंग डे से पहले या उसके बाद 31st आया, तो मुझे लगता है उसमें थोड़ा बहुत रेस्ट जस्सी को मिला है। अच्छा। बट स्टिल आई एम सेइंग कि डेफिनेटली 5 मैचेस किसी फास्ट बॉलर के लिए खेलना इज नॉट अ बहुत डिफिकल्ट है। जोक। हाँ, इज नॉट अ जोक, बिकॉज जसप्रीत बुमराह जब भी बॉलिंग करने आते हैं ही गिव्स हियर लाइक गिव्स हिम gives his like 100 क्या 200%, because he like the battles, he like that situation, he likes to like express himself कि like हाँ ऐसी सिचुएशन है यहाँ से मैं अच्छा करके दिखाऊंगा। सो मैंने राइट। बोला ना कि जसप्रीत बुमराह इज नॉट लाइक कि मैं लाइन और लेंथ मेंटेन करता हूँ एक जगह पर डालने वाला बॉलर हूँ फिर विकेट मिल जाए, ऐसा नहीं। वेन एवर ही कम्स इज थिंक फॉर द विकेट्स, गो फॉर द विकेट। सो उसमें क्या होता है कि आपका एफर्ट भी बहुत लगता है, और वो जब वो एफर्ट लगता है तो डेफिनेटली पता है। और जैसे अभी उनका एक्शन सिचुएशन भी जरा सा अलग है, जी, it puts a lot of pressure लोड on his back. हाँ बैक, और जो लोड है, और वो लाइक कहते हैं कि हमारे इसमें कहते हैं कि वो स्प्रिंग नी जो भी कहते हैं वो Right. है, उसके बाद उतना लोड आता है
स्ट्रेट लेग फास्ट बॉलर है, और उसके बाद ये लोड आने के बाद और आपके पास एक गो थ्रू बॉलर है, वो जसप्रीत बुमराह। सिचुएशन कुछ हुआ, जसप्रीत बुमराह वापस। सो उसमें बुमराह क्या होता है ना कि जो रिकवरी होनी चाहिए, जो टाइम मिलना चाहिए, वो फास्ट बॉलर को मिल नहीं पाता। सो नहीं मिलता है। सम टाइम, हाँ, सम टाइम मुझे लगता है कि जी हाँ, बिल्कुल 5 मैच खेलने के बाद लोड काफ़ी ज़्यादा था उनके ऊपर। मुझे लगता है कि एक आधा मैच वो रेस्ट कर सकते थे, बट हमें भी पता है कि सिचुएशन क्या थी सीरीज सिचुएशन ही की। ऐसी थी कि अगर जसप्रीत हाँ, बुमराह नहीं होते तो शायद से हम लोग इतना शायद, आगे हाँ, तक पहुंच तो भी हमें नहीं लगता है पाते। कि हाँ, तो सबको ये लगता है कि थोड़ा हमारा बॉलिंग में थोड़ा और शायद हल्का लगता है, या फिर जो सिचुएशन ऐसी थी कि उसमें हम रेस्ट नहीं दे पाए बुमराह को। सो मुझे लगता है वो है, बट हाँ, डेफिनेटली बुमराह के लिए बैक टू बैक, किसी बुमराह के लिए या किसी के लिए भी बैक टू बैक 5 मैचेस खेलना इज नॉट अ नॉट इजी, अ जोक, या और नॉट अ जोक, और वो डेफिनेटली काफ़ी प्रेशर और स्ट्रेसफुल रहता है हर फास्ट बॉलर के लिए। ओके सर, कमिंग अ लिटिल बिट टू यू नाउ। आप, वी ऑल नो कि आप एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड बॉलर हो, इंडियन बॉलर रहे हो, बट हमने पढ़ा है कि आपको इसके पहले मिलिट्री ज्वाइन करनी थी या इंडियन फोर्सेस ज्वाइन करना था, आपको कंट्रीब्यूट करना था टुवर्ड्स, बट देन यू couldn't happen और आपने क्रिकेट ज्वाइन किया जिसमें आपने बहुत अच्छा नाम अपने लिए किया। बट आई हैव हर्ड कि अभी आपको, नाउ दैट यू आर एन एस्टेब्लिश्ड प्लेयर, यू वांट टू गिव इट बैक टू द इंडियन मिलिट्री, इंडियन पुलिस। कैन यू स्पीक अ लिटिल बिट अबाउट इट? आप क्या सोच रहे हो, आपका क्या इनिशिएटिव है टुवर्ड्स दैट? यूजली देखिए, अभी दोनों का काम है कि अपने देश का नाम रोशन करना, देश को राइट। सपोर्ट करना, उनकी रक्षा करना। सो हम लोग सपोर्ट और देश का नाम रोशन कर सकते हैं, मीन सेव करना मीन्स वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं हम, बट जो आर्मी या पुलिस है, जो भी है, वो जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं, बिकॉज हमें तो पता है कि हमें जाके क्रिकेट खेलना है, बट एज अ आर्मी मैन, इफ यू थिंक कि आपको पता है, आप भर्ती हो गए, आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, और आपको पता है कि आपको जाके बॉर्डर पे खड़ा होना पड़ेगा, आपको वहां पे शायद गोली भी लग सकती है। आप मुझे बताओ कि कितने लोग रेडी हो जाएंगे कि हाँ, आपको वहां पे गोली लगेगी, आप जाके खड़े हो जाओ बॉर्डर पे। वेरी तो लेस। मुझे लगता है कि वो वो उसे कहते हैं, वो होता है कि माइंड, यानी टफनेस, कि आपको पता है कि मुझे वहां जाने के बाद गोली भी लगेगी, उसके बाद भी बंदा वहां पे खड़ा है। सो राइट। आई सल्यूट फॉर दैट आवर इंडियन आर्मी, जो हर सिचुएशन में, हर लाइक परेशानी में अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाती है। बिकॉज हम तो छोटा मोटा जो हमारे हमसे हो सकता है, वो हम सपोर्ट कर रहे हैं अपने देश को, यानी नाम रोशन करना, बट देश की सेफ्टी और वो सारी चीज़ें, हमारी जो पुलिस फोर्स हो या फिर आर्मी फोर्स हो, सो इन लोगों के हाथ में होता है। क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि देश में ऐसी ऐसी अनवांटेड चीज़ें हो जाती हैं, जिसके लिए पुलिस वाले भी, जैसे हम बात करेंगे जो इंडिया में इतने सारे हमले हुए हैं, वो आप 11/26 बात करोगे, जब आपका ताज होटल पे अटैक हुआ था, मुंबई में वो हुआ था, सब चीज़ों राइट। में, हाँ, किन की जाने की, कुछ लोग नॉर्मली, कुछ आम जनता भी मरी, बट उसमें पुलिस के लोग, उनको इतने सारे लोगों की जाने गई। उसके बाद जो हमारे स्पेशल फोर्स हैं, वो आके उन्होंने रेस्क्यू काम किया। सो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें सोचने के लिए यार, और करने के लिए ना जिगर चाहिए, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारे पास कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम सोच सकते हैं ऐसा करें ऐसा करें, बट जो बंदा वहाँ खड़ा होने के बाद सोच सकता है कि यार गोली लग सकती है, उससे मेरी जान जा सकती है, बट उसके बाद उनकी फैमिली है, इतने सारे लोग हैं उसके पीछे, फिर भी वो डरते नहीं है, फिर भी वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, और वो चीज़ वो इंजॉय करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें कैसे आती है, जब आप अपने देश से, अपनी मिट्टी से इतना प्यार करते हो कि नहीं, बहुत हमें ज्यादा अपने देश प्यार के लिए होता कुछ है। करते हैं, कुछ करना है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो अलग चीज़ है। और दूसरी चीज़ है, आर्मी एक चीज़ और सिखाती है आपको, डिसिप्लिन। राइट। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको कुछ भी अचीव करना है, उसके लिए आपको डिसिप्लिन, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आर्मी एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो सारी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। सुबह उठना, अपने कपड़े, अपने बूट पॉलिश, सब कुछ खुद करना है, ट्रेनिंग भी करना है, सब कुछ खुद करना है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ से सीखी जा सकती है, उनसे सीखी जा सकती है। सो मुझे लगता है इसलिए मुझे आर्मी पसंद भी था। और बैकग्राउंड तो नहीं है मेरा फैमिली का कोई, बट मेरे जो फूफा जी थे, वो सूबेदार पोस्ट पे रहे हैं। तो एक होता है कि राइट। सारी चीज़ें देख के कभी कभी आपको लगता है कि नहीं यार। तो मैंने कोशिश की थी। सो आई डोंट नो इज अ गुड लक और बैड लक, समथिंग इज हैपन इन इन लाइफ। मेरे लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में कुछ और लिखा था, कुछ और करना था। तो वहाँ ना जाके मैं यहाँ पे भी देश के लिए कुछ कर पाया, और वो मेरे लिए ने एक आपने बहुत बहुत बड़ी कुछ बात किया है। देश के लिए, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद सो दैट। बट नाउ बहुत बड़ी अभी बात आप है। और सोच रहे हो कि आप कैसे और कंट्रीब्यूट करें, विच इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग।
तो क्योंकि तो बहुत ज्यादा लोग इतना नहीं सोचते, इतने आगे तक नहीं सोच पाते टू गिव इट बैक टू अ सोल्जर, जैसे आपने कहा कि वो लोग अपना लाइफ रिस्क में डाल देते हैं। तो अभी आपका क्या सोच है सर? व्हाट आर यू प्लानिंग नाउ, व्हाट टू डू नेक्स्ट? यूजली अभी तो मेरी ऐसी सिचुएशन है, एज भी इतना है तो मैं जाके फिर से भर्ती तो नहीं हो सकता, क्योंकि राइट। आर्मी की लाइफ ऐसे है कि एक एज के बाद आपको जॉब छोड़नी पड़ती है, रिटायरमेंट हो जाता है। सो अभी मैं उस एज में, बट मुझसे जो भी हो सकता है, अगर कंट्रीब्यूशन है या उनसे जाके मिलना है, उनसे बात करना है, उनसे उनके लाइफ के बारे में जानना है, डेफिनेटली बॉर्डर हो या कहीं भी जाके उनसे मिलने का मौका मिलता है, डेफिनेटली मैं वो सब चीज़ें देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ और फील करना चाहता हूँ कि कैसा लगता है कि आप जब, ओ। आपको पता है कि मैं बॉर्डर पे खड़ा हूँ, यहाँ से गोली कभी भी राइट। आ सकती है, क्या फील होता है। तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ मेरे दिमाग में है, वो पहले भी थी बट अभी भी है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं ये सारी चीज़ें ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, उनसे बातें करना चाहता हूँ, जो जिन्होंने बैटल लड़ी है उस टाइम पे उनका क्या एक्सपीरियंस होता है, और उनका माइंडसेट कैसा होता है उस टाइम पे। तो डेफिनेटली, और जो मेरे से हो सकता है, हमारे सपोर्ट से जो हमारी आर्मी के लिए बेस्ट होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो मैं कर एब्सोल्युटली सकूँ। सर, जो कि बहुत ही बड़ा थॉट है। इट्स अ वेरी ग्रेट थॉट टू इवन कंसिडर दैट you being such an established cricketer. We have seen other cricketers as well, but no one thinks about it so early in their stage. आप अभी रिटायर भी नहीं हुए, you're still playing, but you still want to experience that, which is a very good initiative, and we hope to see more about it. We hope to cover more about it. जैसे जैसे आप ये करते रहोगे, we'll obviously cover it, and we like to see a journey throughout it. Now coming to a डेफिनेटली। little bit IPL side. I'll ask a little bit about IPL and Gautam Gambhir, what Manoj Tiwari said. Are you comfortable answering that? Because you are part of 2014 IPL winning team, right? So, did you hear what Manoj Tiwari said about Gautam Gambhir? अभिषेक, लाइक जेन्युइनली टेलिंग यू, आई एम नॉट लाइक न्यूज पर्सन, और आपको Right, मैंने क्या बोला, आई एम नॉट बिलीव व्हाट पीपल सेइंग आउटसाइड right. तो द। उनने इतना बोला कि एंड मैं आपको एक उनकी कॉन्टेक्स्ट थिंकिंग दे क्या देता है हूँ। किसी के लिए, उनकी थिंकिंग किसी के लिए क्या है, वो किसी के लिए क्या है, और मैंने क्या बोला कि कौन आपके लिए क्या बोलता है वो उनकी समझ है, Absolutely पर right. आपकी क्या समझ है खुद के लिए, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं लगता है कि अपनी समझ से अपने काम करना और अपनी एक दुनिया और अपने आप को इतना स्टैब्लिश क्रिकेटर बनाना, वो अलग चीज़ है। अगर मैं 10 लोगों की बातें सुनते रहूंगा तो मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं Right. पाऊंगा। Absolutely right. तो मैं यार, मैं तो हमेशा अच्छा ही बोलूंगा गौतम गंभीर के लिए, क्योंकि मैंने उनके कैप्टनसी में मैंने डेब्यू किया आईपीएल का, Right. जब मैं गया था। और मुझे नहीं लगा जब मैं उनके कैप्टन से खेला कभी उन्होंने मुझ पर प्रेशर डाला या कभी क्या। जब मैंने, मुझे पता है कि जब मेरा डेब्यू हुआ था उन्होंने मेरे हाथ में बॉल दी और डायरेक्ट स्ट्रेट बोला कि किसी का कुछ सुनना नहीं, आपको जैसा लगता है वैसा बॉलिंग करो, Right. डोंट लिसन एनी वन। तो वो फ्रीडम और वो सब चीज़ें उन्होंने मुझे दी। और जब तो 2014 पे भी मैं खेला, 17 तक खेला मैं उनके साथ केकेआर में। अपने 11 तो विकेट्स लिए थे 2014 विनिंग सीजन में भी, जो वो कि भी आधा बहुत सीजन बड़ी बात खत्म है। होने के बाद, आधा दुबई में हुआ था और आधा इंडिया में हुआ। राइट। तो जब वो इंडिया में, एक मैच मैंने दुबई में खेला था शायद, और उसके बाद बाकी मैंने इंडिया में आके खेले। सो डेफिनेटली जहाँ भी उन्होंने मुझे मौका मिला उन्होंने दिया, और उसके बाद हमने अच्छा किया, मैंने जीता। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे कुछ ऐसा कुछ बोला हो कि मेरे बॉलिंग पे इफेक्ट पड़ा हो या एज अ पर्सन मुझ पे कोई इफेक्ट पड़ा हो। उन्होंने हमेशा कॉन्फिडेंस दिया है। अगर वो किसी यंगस्टर को सपोर्ट करते हैं तो वो उनकी अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो यंगस्टर को उतना फ्रीडम और कॉन्फिडेंस मिले कि वो अच्छा करे आगे चल के। राइट। दैट्स इट। राइट। एब्सोल्युटली। तो ऐसा बोला गया है कि रिसेंटली कि उनने बहुत क्रेडिट्स लिए थे 2014 केकेआर विन के। बट डू यू थिंक कि उनने सबको इक्वली क्रेडिट देते, जितना हम गौतम गंभीर को जानते हैं, ही हैज बीन अ टीम प्लेयर ऑलवेज, और उनने कभी क्रेडिट तो ऐसे लिए नहीं है। सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट? ये देखो, मैंने आपको क्या बोला, मैंने ज्यादा सुना नहीं, क्योंकि जब जो विनिंग सेरेमनी भी हुई थी मैं उसमें भी नहीं था। जब हम अच्छा। ट्रॉफी जीते उसके नेक्स्ट डे मैं चले गया था, शायद हमारे मैचेस या कुछ होने वाले थे, तो आई ऑलरेडी लेफ्ट राइट। फ्रॉम देयर। सो जो हमारी पूरी यात्रा निकली थी, यानी मीन्स लाइक कोलकाता के अंदर सारे प्लेयर थे, इन्वॉल्व थे। आपने देखा होगा, मैं नहीं था राइट। उसमें। वहाँ पे जब हम लोग स्टेडियम पे गए, हमने वो सेलिब्रेशन किया वहाँ पे, तो मैं नहीं था, मैं ऑलरेडी निकल चुका था। और दूसरी बात रही सुनने की, मैंने नहीं सुना वो इंटरव्यू कि 2014 में गौतम गंभीर ने सारा क्रेडिट खुद पे लिया है या जो भी किया है। सो आई एम नॉट अ न्यूज़ पर्सन। सो मुझे लगता है कि जो चीज़ खुद आंखों से देखो और सुनो वो अलग बात है। यानी दूसरे के बोलने पे और वो करने पे मैं कभी बिलीव नहीं करता, और मुझे नहीं लगता कि किसी को ये भी सोचना चाहिए कि किसने क्या बोला था आपके। तो मैंने, एब्सोल्युटली। अनेक लोग होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कच्चे कान होना भी खराब चीज़ है। तो इतने भी कानों के कच्चे ना बनो कि किसी ने कुछ बोल दिया तो आप उसे सच मान लो।
अगर राइट। आपको लगता है कि किसी ने आपके बारे कुछ गलत बोला है आपके बारे में, या किसी ने ऐसा कुछ बोला है, तो आप स्ट्रेट अवे बात कर सकते हो। आप एक ही फील्ड के लोग हो, आप क्रिकेट खेलते हो साथ में, कुछ गलत फहमियां हैं या कुछ भी है तो आप क्लियर कर सकते हो आमने सामने बात करके। ऐसा तो होना कि कुछ गलत हो जाएगा उसमें। सो मैं ये वाला सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करना, विश्वास वो नहीं सारी है। चीजें विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि, और हम जिस जनरेशन में रह रहे हैं, तो इस जनरेशन में तो बिल्कुल नहीं करना। जब पुराने टाइम की बात है, अब तो आपके पास फोन है, सब कुछ है, आप बातें करके क्लियर सब कर सकते हो यार, इजीली ऐसा कांटेक्ट कुछ हो। करके बातें हो सकती है। एंड हाँ। सर, लाइक आई विल लाइक टू मेंशन यू आर अ वेरी पॉजिटिव मैन, और वो आपके गेम में भी दिखता है। बट लास्टली, आर यू ओपिंग फॉर अ कमबैक इन द इंडियन टीम एज वेल इन द आईपीएल गोइंग फॉरवर्ड? बिकॉज ऑब्वियसली यू आर नॉट डन येट, ऑब्वियसली यू कैन मेक अ कमबैक। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या है सर? दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन टू एंड द। ये यूजली क्या हुआ कि एवरीवन नो दैट आई एम नॉट सिलेक्टेड फॉर द आईपीएल दिस ईयर, सो डेफिनेटली इज शॉकिंग फॉर द एवरीवन। मैं लास्ट वेरी 15 वेरी साल से शॉकिंग फॉर मी एज वेल। राइट। आईपीएल लास्ट 15 साल से खेल रहा हूँ मैं, सो डेफिनेटली इज वेरी शॉकिंग फॉर मी। और मैं क्यों झूठ बोलूंगा यार, आई फील्स बैड कि इतने साल खेलने के बाद आप 150, क्लोज टू 150 आईपीएल मैचेस खेल चुके हो, उसके बाद आप एब्सोल्युटली। सेलेक्ट नहीं होते हो, तो इट्स शॉकिंग। एंड उसके बाद दूसरी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि वो जो भी रहा होगा रीजन, मैंने जो बोला कि अपनी अपनी सबकी बात है, जो फ्रेंचाइजीज है उनकी क्या थिंकिंग थी, उनकी क्या सोच थी, उनकी समझ थी, या मेरा नाम काफी लेट आया, दे डोंट हैव मनी, वॉट एवर इज या हैपेंड, बट इज समथिंग इज हैपेंड। सो इज वेरी लाइक समथिंग रॉन्ग हैपेंड विथ मी, सो आई एम वेरी लाइक फ्रस्ट्रेटेड एंड वेरी लाइक डिस्टर्ब। सो बट स्टिल ओके, अब किसी और का डिसीजन मैं तो चेंज नहीं कर सकता, बट या बट उसके बाद आफ्टर दैट सडनली समथिंग इज हैपेंड, लाइक मेरे लेग में जो भी इंजरी हुई, आई जस्ट डन माई सर्जरी। एंड टिल, जब तक मेरी बॉडी ठीक है, मुझे लगता है कि मैं 140 अभी भी डाल सकता हूँ। सो टिल दैट टाइम आई विल डेफिनेटली प्ले। और जिस दिन मुझे खुद को लगेगा कि नहीं भाई मैं नहीं डाल सकता हूँ, सो आई विल क्विट लाइक माई सेल्फ। राइट। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा टाइम आ गया, ये करना चाहिए, कोई क्योंकि वो आपको मुझे बता पता नहीं है कि, सकता वो बात, यू हाँ ओनली कि नो। नॉर्मली, हाँ को मुझे पता है जिस दिन मेरी बॉडी मुझे बोल देगी कि नहीं आपका टाइम हो गया, सो उस दिन मैं, क्योंकि मैं वैसे भी ऐसा बंदा नहीं हूँ कि जो ज़बरदस्ती खेले और ज़बरदस्ती चीज़ों को खींच के ले जाए, क्योंकि मुझे खुद इंजरी में या ऐसी सिचुएशन में खेलना पसंद नहीं है जिसमें कि मैं अपना 100% नहीं दे सकता। सो डेफिनेटली स्टिल द स्पार्क इज देयर, और डेफिनेटली आई एम होपिंग फॉर द ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग कम बैक अगेन। और जैसे ही मेरी इंजरी रिकवर होगी तो डेफिनेटली आई स्टार्ट my journey again, and योर ग्राइंड hoping अगेन। for the yeah, and hope for the best. That's it. या एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि इंडियन पिचेस ने कभी फास्ट बॉलर्स को प्रेफर नहीं किया है, बट हमने आपको देखा इतने सालों तक, यू हैव कम, यू हैव ग्राइंडेड ओवर देयर, आपने अपना 100% दिया है ओवर योर बॉडी, एंड वी आर टोटली एक्सपेक्टिंग यू टू मेक अ कमबैक। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू सर, एंड वी होप दैट टू सी यू अगेन इन मेन इन ब्लू एज वेल एज इन द आईपीएल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। Definitely, definitely. Can't say oh, men in blue, but definitely men in white. Test. Yeah, Still, yeah, that hope is go absolutely. Hopes high. high. So definitely in the test cricket, definitely. Thank Thank you. you so Thank